To begin with today, I'm moving to the fifth chapter of your first book, that is organizing. As usual, today I'll be summarizing the chapter for you, then we would start doing it along with the NCERT. We started with the first function. पहले तीन चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, नेचर, देन प्रिंसिपल्स एंड business environment. Why? Before we manage a company, before we manage an organization, हमें ये पता होना ज़रूरी होता है that what is management, मतलब हम क्यों मैनेज कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि आपका जो बिजनेस में प्रोडक्शन है. A good production can only become successful if there is a good management. There have been number of companies जहाँ management अच्छा ना होने की वजह से the business has incurred loss. In the recent past also there are many examples जहाँ management की वजह से there have been problems. Not to name, but yes, the companies have laid off, the companies could not meet their targets, the companies could not complete their commitments. और इसीलिए हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था वो पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज इट अबाउट, whether it is like an art that we apply, whether it is like a profession or it is like science. Then we learned that management is very important और एक अच्छे organization को सक्सेस रेट अगर चाहिए तो वी नीड अ गुड मैनेजमेंट. देन वी सेड ये मैनेजमेंट है तो किस प्रिंसिपल्स पर, हाउ डू वी मैनेज द थिंग्स. वी लर्न that there are certain functions which are performed by the managers. Now here the manager means the entire team which is managing an organization. On certain principles which we have broadly classified as Fayol and Taylor, we try to manage the organization. And also for a better performance, we need to scan our environment. तो पहला फंक्शन जो हम करते हैं वो ये है कि अपनी कंपनी के लिए हम प्लान करते हैं. The planning is done step by step at different levels. The top level plans for the entire organization, the middle level has to be a correlate, इसीलिए that plans according to what they have got the instructions from the top level, and the supervisory level, which is actually the workforce, they plan for completing their work. So that was a very first function which is only on paper, which is only on paper. The work has actually not been started, हमने plan किया. So now the second function which is the base for any good management is organizing. Now the word organizing हम लोगों ने बहुत बार सुना है. Keep your things in an organized manner. Keep your things are lying in a disorganized manner. तो जो वर्ड ऑर्गेनाइज्ड है इसका मतलब होता है हर चीज को तरीके से रखना. तो व्हाट इज इट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. वहां तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि सामान को ठीक रखना है. दैट मीन्स एक प्रॉपर सेटअप. दैट मीन्स a proper structure, because once you
organize the company into different departments, then only you can fill it with skilled people. जब आपको ये पता होगा कि ये डिपार्टमेंट मेरा ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट मेरा ये काम करेगा, then only you will be able to fulfill with the skilled people, and you would be able to establish a proper hierarchy कि किसको अथॉरिटी दी है, किसको उस काम को करना है. जो हमने 3 लेवल्स हमने बोले थे, तो वो जो लेवल्स के बीच में, दैट इज हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल में सिर्फ एक मैनेजर तो होगा नहीं. ही विल बी हैविंग अ कंप्लीट टीम, उसके नीचे पूरे सबऑर्डिनेट्स होंगे. तो हु विल बी डूइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट. मोर ओवर, हमारी जो कंपनी है, what kind of product it is going to make? Is it going to make a single product? Is it going to make multi products? तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने स्ट्रक्चर को, यानी कि अपनी कंपनी का पूरा एक नक्शा, अ प्लान, अ मैप आई हैव टू मेक. मुझे उसके लिए एक प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ेगी कि मेरी जो कंपनी है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू दीज एरियाज. क्योंकि in Seoul, in a small shop, it is possible that a single person is able to manage the entire gamut. But in a company, it is not possible. In an organization where you are producing certain things, वहाँ ये possible नहीं होता है. And that is why we have to organize our structure. Now, अब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज, अब आप सोचेंगे मैम व्हाट इज स्ट्रक्चर. सी व्हाट हैपेंस इज, यू मे बी हैविंग सिंगल, आपका जो है कंपनी है, द कंपनी मे बी हैविंग वन सिंगल प्रोडक्ट. सिर्फ आप जो हो मोबाइल बना रहे हो, सिर्फ मोबाइल. अब मोबाइल में व्हाट इज रिक्वायर्ड, मोबाइल में आपको रिक्वायरमेंट होती है द बेस चिप्स. देन यू मतलब आपको उसको असेंबल करना है. सो यू विल बी प्रोक्यूरिंग द चिप, यू विल बी प्रोक्यूरिंग द स्पीकर्स, यू विल बी, यानी कि आपका प्रोडक्शन सिर्फ मोबाइल से ही रिलेटेड होगा और उससे ही रिलेटेड आपके पास सामान आएगा. देन द स्टाफ हु यू रिक्वायर, दैट पर्सन, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, द पर्सन शुड बी वेल केपेबल विथ IT टेक्नोलॉजी. देन आप मार्केट में जाकर उसको बेचोगे, मार्केट में जाकर आप उसको बेचोगे, तो आपको सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम भी वो होना चाहिए who are well versed with the IT department. So you will be dividing your company's work into different categories. आप अपनी कंपनी के जो काम है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे. You will say that the first one, मतलब कि this is the production team, this is the marketing team, this is the finance team. तो आप इसको अलग अलग, प्रोडक्शन वाला जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से रिलेटेड काम करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा, और जो IT वाला होगा वो उससे रिलेटेड काम करेगा. तो दैट मीन्स यू हैव ऑर्गेनाइज्ड यूर कंपनी. आपने अपनी कंपनी को एक शक्ल दे दी है. दैट इन माई कंपनी आई विल बी हैविंग 5 डिपार्टमेंट्स, 4 डिपार्टमेंट्स. इस डिपार्टमेंट का काम ये होगा, इसका हेड ये होगा. इस डिपार्टमेंट का काम ये होगा, इसका हेड ये होगा. इस डिपार्टमेंट, तो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड ये जो मैंने आपको बताया, ये आई हैव टोल्ड दैट दिस इज ओनली व्हेन यू आर हैविंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन. Like your company is only manufacturing mobiles, your company is only manufacturing automobiles. तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि उसमें जो भी काम होगा वो related होगा. Certain times you may be having 2 or 3 products. मोबाइल भी है,
क्लोथिंग भी है, बुक्स भी है। 3 अलग अलग आपकी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, 3 अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज है। तो उसमें आपको जो है डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। बुक का डिवीजन, क्लोथ का डिवीजन, मोबाइल का डिवीजन, और उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोबाइल का परचेसिंग, मोबाइल का मार्केटिंग, मोबाइल का फाइनेंस। उसी तरीके से बुक का परचेसिंग, बुक का मार्केटिंग, बुक का फाइनेंस यू विल बी हैविंग, एंड दैट इज डिविजनल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर, यानी कि आप अपनी कंपनी को पहले प्लान करोगे व्हाट विल बी द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, देन यू विल मेक अ मैप दैट मेरी जो कंपनी है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। उसमें हु विल बी आइडेंटिफाई करोगे, डिवाइड करोगे काम को, देन यू विल बी उसको अलग अलग नाम दोगे। प्रोडक्शन मैनेजर, उसका नाम क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, आप उसको अलग अलग नाम दोगे। देन उसका कौन हेड होगा उसको आप बताओगे कि जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसके ये ड्यूटीज होंगे, उसके नीचे सुपरवाइजर होगा, उसके नीचे ये होगा। यू विल बी, मतलब कि आप एक हिरार्ची बनाओगे, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर ईच कैटेगरी। और ये सब जो हम बनाते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज what we call as organizing. So now what do we do? Organizing means to create a structure, to design the work, identify it, divide it, give it a departmental name, then place the person who is going to do the duties, और उसके नीचे कौन होगा ये करो। यानी देर आर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब बेटा आपके जितने भी स्टेप्स होते हैं, लाइक इन द प्लानिंग ऑल्सो यू हैव द स्टेप्स, सिमिलरली यू हैव द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। कंट्रोलिंग में भी आपके स्टेप्स हैं। स्टाफिंग के अंदर जो है इन वन पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के नीचे जो मतलब कि एक आएगा उसमें आपके स्टेप्स होंगे, and wherever you are having the steps there you have to write it in a orderly manner। और ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं। दिस ऑल्सो कम्स एज आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि उसने ये काम किया है। He has divided the work into small units. What is that? So it can come in that way also. So what are the steps in organizing? The very first is आइडेंटिफाई, आपकी कंपनी में कौन कौन सा काम होने वाला है। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज, मतलब कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल, यानी कि जो एक्टिविटीज में आप रॉ मटेरियल लाओगे, जो एक्टिविटीज में आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के अंदर किसी मशीन में डाल के यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट, दैट वुड ऑल कम अंडर प्रोडक्शन। Sometimes your company may not be dealing with any goods, it may be only dealing with services. तो आपका जो पहला काम होगा that would come. Then the people, the group of people who will be dealing with the money, getting the finance, deciding about the financial structure, they all will be placed under finance department. ये सारा काम करने के लिए टुडे वी नीड अ डिजिटल वर्ल्ड, एक आईटी डिपार्टमेंट, द वन हु विल बी डीलिंग विथ एवरीथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। So that all will come under the IT department. The people who will be endorsing your product, the people who will be selling your product, they all will be placed under the marketing and sales and marketing department. तो आपने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया काम को, सिर्फ आइडेंटिफाई किया और उसको डिवाइड किया कि ये इस काम को हम प्रोडक्शन के अंदर डालेंगे, इस काम को हम इसके अंदर, आपने डिवाइड कर दिया। These all activities will be done in my company. Then आप उसको एक नाम दोगे,
which is called as departmentalization. Means all the work which you have divided under production will come under the production, IT, etc. Then you will make a hierarchical, एक आप hierarchical ग्राफ बनाओगे जहां आप assign करोगे who will be responsible for this department and who all will be working under him. Then you will establish कि किसको अथॉरिटी आपने दी है, किसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर आती है. So you will be assigning that Mr. X will be heading production department. उनके नीचे 10 स्टाफ होंगे. Then you will be assigning the work and you will tell कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. Establishing the reporting relationship. So these are the 4 steps in organizing. So now why do we need organizing? वैसे तो देखा जाए on a very you can say broad manner, it is very easy to say अगर सामान organize होगा नहीं होगा, अगर हमारा काम organize नहीं होगा, if our company is not organized, then how will we ensure that the work is done efficiently and effectively? So the very first is it helps in the specialization. Now the specialization can be of department, the specialization can be of division. मतलब अगर production वाला जो है, if a person who is well versed with production, he will be specialized in that. अगर हम उसको और कोई काम देंगे तो he will not be able to do it in that efficient manner. So that means आप हर एक काम को जो हो ऑर्गेनाइज किया, you have properly set up, उसके लिए आपने एक प्रॉपर सेटअप बना दिया है. तो जो भी उस काम को ओवरसी कर रहा है, he might be a specialized, he might be an expertise. Then there is a proper clarity. कौन काम को करेगा, उसके नीचे कौन है, who is going to give the authority, who is having the responsibility. There is a complete clarity. And as I said in the very starting, that when we are allocating the jobs, when we are dividing the jobs, so that would also ensure that there is no doubling. एक काम को 2 इंसान तो नहीं कर रहा है. एक प्रॉपर सेटअप है हमारे पास में. प्रोडक्शन के अंदर ये सारी एक्टिविटी आने वाली है, मार्केटिंग के अंदर सारी एक्टिविटी. तो ऐसा नहीं कि 2 जने एक काम को कर रहे हैं. बिकॉज व्हेन देयर इज अ रिटन प्रॉपर आपका एक सेटअप हो गया है, तो the work will be done accordingly. Then when a well designed organizational structure जो है, it is dynamic in nature. It can adapt to the dynamic environment. अगर हमें एक्टिविटीज और ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं. अगर हमारा स्पेशलाइजेशन इज ऑन डिविजन, मतलब हम कपड़े भी बनाते हैं, मोबाइल भी बनाते हैं, बुक्स भी बनाते हैं, तो देन इफ वी वांट टू ऐड वन मोर डिविजन तो वो इजी हो जाएगा. इट्स इजी एंड इट ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प्स इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. The people who are working in that department will be able to give their 100%. तो जो पर्सोनल्स हैं उनका भी जो टैलेंट होता है, मार्केटिंग के अंदर इतने सारे लोग होते हैं and they are all dealing with the same marketing, so they are, उनकी जो टैलेंट होती है that is developed, and it also helps in expansion and growth in the future. So as I said, we have अभी मतलब हमारे वैसे तो there are number of organizational structures, but in our 12th standard we have 2 kinds of organizational structure जो कि हम पढ़ेंगे. That is आपका, प्लीज याद रखना, there is a complete confusion. Structure का मतलब हो जाता है dividing the work on the basis on the nature, और दूसरा एक और भी अभी आएगा, वो मैं तब बताऊंगी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवाइडिंग योर कंपनी. तो मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाया था दैट वी हैव 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दैट इज व्हेन वी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है,
दिस इज अ फ्रेमवर्क। जैसे हम एक फ्रेम के अंदर एक तस्वीर को लगाते हैं, दिस इज अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमने बता दिया है कि जो हमारी कंपनी है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है। नाउ माई कंपनी इज डीलिंग ओनली विथ मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, यानी कि दोनों का जो नेचर ऑफ वर्क है वो सेम है, सिमिलर है इन नेचर। सो आई हैव टेकन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलती हूँ फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब इसको मैंने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड आईटी। मैंने जो है अपनी कंपनी के काम को 4 हिस्सों में कर दिया है। मेरी कंपनी छोटी है, मैंने अपने अपने मतलब 4 डिपार्टमेंट्स है मेरे अंदर। एक परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वही परचेज करेगा, उसका काम है रॉ मटेरियल्स परचेज करना, उसका काम है सारा। तो आई हैव गिवन ऑल द वर्क टू परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आई हैव अ मार्केटिंग टीम विच इज ensuring कि कंपनी का जो सामान है वो मार्केट भी हो रहा है एंड इट इज सेल आउट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो सोल्ड आउट। फाइनेंस टीम इज द वन जो अकाउंट्स भी देख रहा है एंड मेरी कंपनी को जो पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल जो नीड्स है उसको भी देखता है। एंड आईटी डिपार्टमेंट इंश्योर्स की जो सारा काम है विच हैज़ टू बी डन विद द हेल्प ऑफ द नेट, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स, इट इज़ रनिंग स्मूथली। तो ये जो मैंने अपनी कंपनी के काम को ऐसे बांटा है, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल एंड दिस इज बेस्ड ऑन द what we call as the activities, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शंस। मेरी कंपनी में प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, मार्केटिंग का फंक्शन होता है, फाइनेंस का होता है, आईटी का। एंड देन हमारे अंदर आता है, एज आई सेड, प्रोडक्शन का एक हेड होगा, मार्केटिंग का एक हेड होगा, फाइनेंस का एक हेड होगा, आईटी का एक हेड होगा, एंड देयर विल बी नंबर ऑफ subordinates, उसके नीचे there will be some subordinates who will be working, प्रोडक्शन मैनेजर उसके नीचे। अब हर कंपनी में देर आर डिफरेंट लेवल्स, किसी कंपनी में बहुत सारे होते हैं और किसी कंपनी में कम होते हैं, और ये जो ज़्यादा या कम होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वी कॉल इट एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्शन के नीचे कितने लोग हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, the number of subordinates a manager can effectively handle, उसको हम बोलते हैं span of management and it is called as tall management भी हो सकता है and short भी हो सकता है। tall का मतलब many, there might be मतलब कि कम कम बहुत सारे, एक काम ए ने किया, दूसरे काम बी ने किया, तीसरे काम सी ने किया, चौथे काम डी ने किया, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, या फिर ए बी सी सिर्फ 3 ही लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है। and that is called as tall or short span of management. Then we have, ये तो रहा हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरी कंपनी इज डीलिंग ओनली विथ मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। बट इफ आई माई कंपनी इज हैविंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, या फिर मेरा जो मोबाइल और टैबलेट ही है लेकिन मेरा प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, देन I'll need more departments, I'll need more people। या फिर मेरी कंपनी में मोबाइल्स भी हैं, मतलब कि टैबलेट्स भी हैं, मेरी कंपनी में जो है कूलर भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं, टेक्सटाइल्स भी है, लाइक रिलायंस इंडिया। मतलब आई एम मैन्युफैक्चरिंग पिन टू पॉन्ट, मतलब कि सब कुछ मैं कर रही हूँ। देन हाउ कैन आई मैनेज विद दिस स्ट्रक्चर? अब प्रोडक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्शन होगा, मोबाइल का होगा, टेक्सटाइल्स का होगा, तो देन आई हैव टू मेक अनदर स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मेरी कंपनी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी इनटू डिफरेंट डिविजन्स। एक मोबाइल का देख रहा है, एक टेक्सटाइल्स का देख रहा है, तीसरा आपका जो है इट मे बी क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, चौथा आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। ये 4 मैंने डिवीजन कर दिए।
या नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हो सकता है, डिवीजन कर देंगे। अब इस डिवीजन के अंदर अब ये जो मोबाइल है इसके नीचे फिर मेरा जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। मोबाइल का प्रोडक्शन, मोबाइल का मार्केटिंग, मोबाइल की फाइनेंस, मोबाइल का आईटी। सिमिलरली टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन, टेक्सटाइल्स की मार्केटिंग, टेक्सटाइल्स का फाइनेंस, टेक्सटाइल्स की आईटी। क्लोथिंग मतलब कि नेक्स्ट इज आपका जो है तीसरा जा रहा है उसका अलग। तो आई विल बी हैविंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका फंक्शनल आ जाता है, बट फंक्शनल उन कंपनीज के लिए होता है जहां वो 1 या 2 सिमिलर लाइंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एंड दिस 2 ये जो हमने फ्रेमवर्क बनाया है दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इसी के अंदर जो है हमारा जो काम होता है वो इट हैपेंस। So we have 2 kinds of organizational structure right now in 12th standard. One is आपका functional, that is based on the specialization of the work. And another one is division where the number of products या फिर आपके number of branches है। इसको इतने अच्छे से learn करना बच्चे आप लोग, क्योंकि this is one of the most confusing question which comes. क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोडक्ट नहीं देते, वो कहते हैं कि द कंपनी इज हैविंग नंबर ऑफ ब्रांचेस। वहाँ पर भी हमारा डिविजनल चलता है, क्योंकि हम डिवाइड कर देते हैं इट अकॉर्डिंग टू द रीजन। नॉर्थ रीजन में प्रोडक्शन है, नॉर्थ रीजन में आपका मार्केटिंग है, नॉर्थ रीजन का मार्केट हेड कौन है, नॉर्थ रीजन का मतलब कि इसका आईटी हेड कौन है, साउथ रीजन का आईटी हेड कौन है, दे विल बी डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर, right? So this is 2 kinds, and definitely you also have in your paper the merits and demerits of them. जहाँ हमारे फंक्शनल है वहाँ हमारा स्पेशलाइजेशन फॉर द फंक्शंस होगा। द पर्सन हु इज वेल वर्स विद प्रोडक्शन और परचेज वो उसी चीज़ को देखेगा। बट what are in a divisional, the chaos is there. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे डिविजन्स हैं, sometimes each division will only fight for their own target. तो जो कंपनी का टारगेट होता है वो कभी कभी फुलफिल नहीं होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर डिवीजन को बंद कर देना पड़ता है। अ पर्टिकुलर डिवीजन इज क्लोज्ड, दैट इज बिकॉज द मैनेजमेंट is not that the management becomes inefficient. So there are merits and demerits of both of them, but yes, it is according to the suitability of the products that we are manufacturing. अब हम ये नहीं देख सकते हैं कि किस में merit है किस में demerit है। If my company is expanded, I need to go for divisional. If my company is dealing with only 1 or 2 similar line of products, I would be going only for functional. I don't need for division. So that depends on what kind of product or product line your company is dealing with. Now ये तो जो हमने पढ़ा ये तो हमारा था the structure of an organization, यानी कि कंपनी का एक फ्रेमवर्क। अब in any company we also have one more ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम कहते हैं ये जो हमने अभी बताया आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन assigning the duties, and last but not the least establishing the authority and responsibility relationship. तो ये जो हमने बताया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कैसे हम इसको काम को करते हैं। हाउ डू आई मैनेज माई सबॉर्डिनेट्स, हाउ आई असाइन द वर्क टू देम। मैं उनको ये काम अपना जो है भाई तुम्हें ये काम करना है, माई टीम ए हैज़ टू डू दिस प्रोजेक्ट, माई टीम बी हैज़ टू डू दिस प्रोजेक्ट। तो इस काम को मैं कैसे उन तक पहुँचाती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस
through communication, and that means हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो तरीके के कम्युनिकेशंस चलते हैं. One will be formal and the second one will be informal. Formal organization जो होता है वो कंपनी डेलिबरेटली क्रिएट करती है. याद रखना इस वर्ड को. इट इज क्रिएटेड by the company where the managers have to undertake the work in a systematic manner. You can also say they have to follow the principles of scalar chain. They have to manage the affairs using the principles of scalar chain. हमें अब अगर आपको याद हो तो हमने स्केलर चेन बनाया था. सॉरी, लाइक दिस, दैट एक डिपार्टमेंट है उसके नीचे देयर आर स्टाफ. यहाँ पर भी है तो द वर्क जो है वो ऐसे जाता है. सो दिस स्ट्रक्चर हैज टू बी फॉलोड इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल का मतलब होता है वेयर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड regulations which is deliberately set up in a systematic manner, and the communication जो है that flows within the organization in a scalar chain, and it is divided properly. A देगा, A के बाद वो नीचे B को जाएगा, B के बाद वो नीचे C को जाएगा. There would be no direct interactions. It will be creating a chain of command. Whereas informal organization होता है जो spontaneously create होता है. Remember this word, spontaneously. उसके अंदर हमारा था deliberately और इसके अंदर हमारा वर्ड होता है spontaneously. Spontaneously मतलब अपने आप एक कंपनी में गए, अब आपने काम करना शुरू किया तो definitely you will be having your boss, you will be having your team members, you will be having some people who are working under you. अब आप उन सब से क्या सिर्फ रिटर्न में लोगे? जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है मोर और लेस इट इज रिटर्न. याद रखना, मोर और लेस इट इज रिटर्न. जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वी कम्युनिकेट इन अ रिटर्न ऑर्डर, मोर और लेस. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज just a chit chat. You are chatting with your boss, you are chatting with your team members, you are chatting. कई कंपनीज में क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का they don't make it, but sometimes they create it. Like क्लब्स बना दिए कंपनीज में. In a club, you may be the head and your boss may be your subordinate. आप क्रिकेट क्लब में हो, आप अच्छे बैट्समैन हो, आपको जो है कैप्टनशिप मिल गई है. ही इज ओनली अ प्लेयर, ही इज प्लेइंग विद यू. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां हम पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस रखते हैं. ऐसे ही आपसे पूछ लिया और भाई बताओ क्या हाल है, क्या मतलब कि चल रहा है आपकी लाइफ में. अ जनरल चिट चैट. एंड इन एनी कंपनी बोथ फॉर्मल as well as informal organizations are there. कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती है जो सिर्फ एक hierarchical written communication formal में चलती है, क्योंकि वहाँ फिर कंपनी में एम्प्लॉयज कभी हैप्पी नहीं रह सकते. So we have both formal as well as informal. But formal is a proper organizing who is authority, who is responsibility. उसके नीचे कौन है? There will be a proper hierarchical level. There will be a scalar chain of command. Whereas informal आपका जो है spontaneously बनता है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, we are having chatting with each other. Nice. But informal also spreads rumors. आप अपने बॉस के साथ खड़े थे, लोगों ने बोल दिया भाई ठीक है. अभी I had this experience with my daughter. She was telling me कि किसी ने उसको ऐसे बोल दिया, तुमने तो मतलब कि एचओडी को अपने जेब में रखा हुआ. A general chit chatting may even give rumors.
The rumors may be in a wrong sense also. But it is important that we keep both the organization. जो पहले हमने पढ़ा वो organizational structure था, और जो अब हमने पढ़ा वो है organization. यानी कि within the company the level of talking. जब हम फॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं फॉर द कंपनीज बेनिफिट इट इज फॉर्मल. व्हेन वी आर जनरली चिट चैटिंग अबाउट जनरल हम बात कर रहे हैं, दैट इज एन इनफॉर्मल. नेक्स्ट जो आपका आने वाला है, ये आपके इस मतलब अब जो नेक्स्ट दो कंसेप्ट हैं, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिविजनल से आपका जो है सिर्फ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कंपनी ऐसे से कर रही है तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज, या फिर डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल आ सकता है. ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप आपका 3 मार्क्स में आ जाता है, जो आपको 4 स्टेप्स लिखने हैं. बट जो अब हम पढ़ेंगे दो चीजें, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेलीगेशन अब हमने पढ़ा, ये मैंने आपको लिखा कि जो प्रोडक्शन ऑफिसर है उसके नीचे लोग काम करें. काम कैसे करेंगे? हाउ द वर्क विल बी डन. अब प्रोडक्शन मैनेजर सारे काम खुद करेगा, जाकर खुद ही प्रोड्यूस भी करेगा, खुद ही रॉ मटेरियल भी लेकर आएगा, खुद ही उसका हिसाब भी रखेगा, खुद ही मतलब कि दूसरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजेगा कि आई नीड दिस मच ऑफ मनी. इज इट पॉसिबल? Is it possible for any manager to do all the work himself? No. It is not possible for a single manager to handle all the work. So, what happens is the managers they keep the important work for themselves. जो काम सिर्फ उनके लिए है, उनके लेवल का है, वो काम वो अपने पास रखते हैं. And they delegate, अपने काम को वो बांट लेते हैं. They share their work with their subordinates. कि इस काम को मतलब प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना ए का काम है, उसको उसका मतलब कि कहाँ से प्रोक्योर होना है ये काम, जो मतलब ये सारा काम फॉलो अप करने वाला बी है. तो ही इज डेलीगेटिंग, ही इज शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज with his subordinate, और उसको हम बोलते हैं delegation. And in delegation we have 3 elements. आपका जब delegation word आएगा तो you will be having 3 elements. One is authority, second is responsibility, and third is accountability. यानी किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, किसके पास उस काम को बांटने का पावर है, वो है अथॉरिटी. से द प्रोडक्शन मैनेजर. द पर्सन एंड अथॉरिटी हमेशा आपका टॉप टू बॉटम जाता है, वो अपने काम को बांट रहा है. उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उनको कमांड करे कि इस काम को आपने करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जिस इंसान को उसने उस काम को दिया है उसे करके वापस देना रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. और वो काम सही या गलत हुआ, whether the work has been done or not done, मतलब वो non complete हुआ या it has not been done in the proper manner, that is accountability. वैसे तो accountability also moves from bottom to top. जिस इंसान का काम था वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रोडक्शन मैनेजर ने वो काम दिया है ही इज नॉट अकाउंटेबल. डेलीगेशन ऑफ, ये पेपर का क्वेश्चन है, डेलीगेशन ऑफ वर्क डज नॉट मीन एब्डिगेशन ऑफ ड्यूटीज.
डेलीगेशन ऑफ वर्क डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटीज। अगर उसने ये बोल दिया कि मैंने तो बी को काम दे दिया था, अब बी ने उस काम को कंप्लीट नहीं किया विद इन द टाइम, तो वो जाकर अपने अपर सुपर मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो बी को दे दिया था, बी ने तो काम नहीं किया। नो, even though he has the authority, but he is also accountable for that work which he has delegated to his subordinates. It is one of the most important, whenever your teachers will be taking, they will definitely take this topic. Delegation does not mean abdication of duties. तो डेलीगेशन का मतलब है अपने काम को शेयर करना, to share your responsibilities with your subordinates, because a single manager will not be able to do all the work. So कुछ काम एक करेगा, कुछ काम, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एलिमेंट, यानी कि उसमें एक अथॉरिटी है, कौन देगा, किसको देगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन उस काम को कंप्लीट करके देगा, एंड अकाउंटेबिलिटी है, whether the work has been done, who is answerable if it is not done properly. The last but not the least of organizing is decentralization. Decentralization refers to many areas, even it is referred to the country also. डेलीगेशन का मतलब है काम को शेयर करना, work has to be shared, and decentralization means the decision making responsibilities को शेयर करना। डेलीगेशन का मतलब है शेयरिंग द वर्क, शेयरिंग द मतलब की द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन, आई हैव टू बी मास्टर्स ऑफ वन, और बाकी जो छोटे काम है या फिर वो काम जो कि मतलब इट इज नॉट, इट डजंट नीड माय, आई विल बी शेयरिंग इट विद माय subordinates. And decentralization is taking the decision for any work. Some companies have the policy of centralized decision. Now what is the meaning of centralized? मतलब जो decision होता है वो सिर्फ top level लेता है, only the top level management जो होता है they take the decision and the rest people have to just follow it. उनको सिर्फ फॉलो करना है, वो अपने लेवल पर they cannot take any decision, all the decisions which have been given by the top level has to be just followed, and that is called as centralized companies or centralized organization. हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी सारी जो मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं they are all centralized. Means the decisions are taken by the ministry, and जो लोग मिनिस्ट्री में काम करते हैं, those who are actually working, they don't have any decision power. जो ऊपर से ऑर्डर आ गया they have to just follow the orders like a herd of sheep, उनको सिर्फ उसको फॉलो करना। Whereas decentralization refers to sharing the decision making responsibilities to the lowest level. Means top level will be taking certain decisions which are very very important for the survival growth of the company, but top level is not there everywhere, हर जगह पे तो top level नहीं होगा। It is the middle level management जो actually काम को देखता है। So when any decision has to be taken, एक कोई project हमें मिला है and we have to decide whether to take or not, some decision making powers are passed to the next level. Similarly जो middle level management होता है वो भी अपने next level को कुछ decision power देता है, क्योंकि वर्क फोर्स वहां पर ऑन द स्पॉट काम कर रहा है। नाउ द मिडिल लेवल कैन नॉट कम ओवर देयर, सो every level has been assigned with certain decision making power, and that is called as decentralization. And
द वेरी बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज कि जो आपके डिसीजंस होते हैं वो आपके क्विकली हो जाते हैं. अगर हम लोग सेंट्रलाइज्ड रखते हैं तो डेफिनेटली द डिसीजंस विल नॉट बी सो क्विक. Whereas in a decentralized organization, अपने अपने लेवल पर वी आर एबल टू, उनको एक दे आर गिवन अ बाउंड्री. आप यहाँ तक, मतलब इफ द डील हैज टू बी डन, आपको जो है यू आर द परचेज हेड. ठीक है, यू आर द परचेज हेड. अब आपको सामान खरीदना है. द कंपनी हैज गिवन यू द रेवेन्यू, मतलब कि आपको जो है दे हैव गिवन यू कि आपको 1 करोड़ के अंदर ये सामान प्रोक्यूर करना, मशीनरी. Now you are the one who will be actually negotiating with the vendor. वेंडर के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो, तो आपको टॉप लेवल जो है इट विल बी गिविंग द पावर कि अगर इसमें 1 करोड़ से इतना ज़्यादा चला जाता है तो यू हैव द पावर, यू कैन टेक द डिसीजन विद इन दिस. हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा तो यू हैव टू टेक अवर परमिशन. सो दैट जो डिसीजन लेने का जो उसको दिया गया है, दैट वुड मोटिवेट द मैनेजर्स, that would ensure efficiency, that would ensure quick decision. They don't need not wait for the top level to come and give. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको अपने लेवल पर देती हूँ. मतलब हम लोग जब दुकान में जाते हैं, when we go to the shops, say we go to the mobile shops, तो हम बोलते हैं कि भाई ये मोबाइल कितने का है, तो he says that this mobile is of 10,000 rupees. तो आप कहते हो कि बट ऑनलाइन में ये सेम मोबाइल मुझे 8,000 में मिल रहा है. इमीडिएटली द सेल्समैन आपको बोलेगा सर मैं आपको अपने लेवल पर 9,000 में दे सकता हूँ. तो वो जो उसने 9,000 बोले ना, दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन पावर. उसको दिया गया कि अगर भाई कस्टमर को जाने मत देना, अगर कस्टमर नेगोशिएट करता है तो यू कैन यूज योर पावर. लेकिन फिर अगर आप अड़ जाते हो, नहीं मैं तो 8,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो वो कहता है सर मैं आपको अपने मैनेजर से मिलाता हूँ, मैं आपको अपने ओनर से मिलाता हूँ. यानी कि द नेक्स्ट पावर लाइज विद द पर्सन हु इज इन हिराची, उससे बड़ा है. द सिमिलर काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैपेंस इन द बैंक्स ऑल्सो. जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं दे हैव मोर पावर फॉर सैंक्शनिंग एनी लोन. उससे नीचे जो लोग होते हैं उनके पास, मतलब जो नेक्स्ट लेवल होता है उनके पास कुछ होते हैं. देन मतलब जिस डिवीजन में, फिर रीजन में, फिर उस एरिया में एरिया मैनेजर्स, उसके बाद जो नीचे काम करते हैं बैंक मैनेजर्स, एवरीवन हैज बीन गिवन सर्टेन लिमिट्स एंड दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि अपने लेवल पे दे हैव द पावर टू डिसाइड एंड दैट इज डिफाइंड कि वो इतने रेंज में डिसीजन ले सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं. तो दिस इज एनी वे व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग. और ये जो जितनी एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं, एवरीथिंग दैट इज ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स, देन उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम देना, देन उनकी एक हेड रखना, उनके नीचे जो एस्टैब्लिश करेंगे सबऑर्डिनेट्स, उनके रिलेशंस को रखना. एंड व्हेन देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग in a formal way also. जब काम होता है तो हम आपको मेल डालेंगे, we may be giving you a letter, we may be giving you the orders. Formal organization and informal organization, when we are generally social interactions हम लोग रखते हैं, that's an informal. While every work, एक और क्वेश्चन आता है कि डेलीगेशन जो होता है वो काम को क्या करते हैं, हम अपने काम को शेयर करते हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं डिसीजन पावर. तो डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, अपने काम को, जो मेन काम होता है मैनेजर के पास, द सुपर मैनेजर ही कीप्स. उसका काम क्या क्या है, मे बी ही हैज टू अटेंड द मीटिंग्स, ही हैज टू नेगोशिएट, वो उसका काम होगा. जो बाकी काम होंगे दैट वुड बी डन बाय द सबऑर्डिनेट्स. दैट्स कॉल्ड एज डेलीगेशन.
एंड जो पावर ऑफ टेकिंग द डिसीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. सो ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, दिस ऑल कम्स अंडर द टर्म व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग. यानी कि कंपनी को ऑर्गेनाइज करना, कौन कैसा काम करेगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, व्हाट काइंड ऑफ टॉक दे कैन हैव, व्हाट विल बी द वे दे विल कम्युनिकेट. ये सारा हम जो है वी मेक अ प्रॉपर प्लान एंड वी implement it. That is called as organizing.